نکاح کے تعلق سے جو آج کل معاشرے کے اندر تقریب منعقد کی جاتی ہے اس کو کچھ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، جس میں بہت ساری خرافات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے نکاح کی تقریب کے موقع پر۔ چنانچہ تقریب نکاح کا انعقاد شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے طریقے کو مانیں، تاکہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس نکاح کے اندر ہم کو برکت جو ہے حاصل ہو جائے، دونوں اعتبار سے ہمارے لیے برکات کا سبب بنے۔ اس بارے میں چند ہدایات میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ جو ہے اس کے مطابق ہم اگر عمل کریں گے تو ہمارے لیے یہ زیادہ موضوع اور مناسب ہے۔ چنانچہ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ایک عمومی ضابطہ جو شرعی اعتبار سے ہے وہ یہ کہ پوری تقریب میں جو نکاح منعقد کیا جائے اس پوری تقریب کے اندر مال کا اسراف نہیں ہونا چاہیے، بے جا فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، ولا تبذر تبذیرا، یہ جو ہے شیطان کے بھائی قرار دیے گئے ہیں فضول خرچی کرنے والے کو، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے پارہ نمبر 15 کے اندر۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، وہ اپنی جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسراف اور بے جا فضول خرچی سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم کو سادہ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جب سادہ نکاح کریں گے تو ہمارے لیے اس سادے نکاح کے اندر برکت کا سبب ہوگا۔ چنانچہ مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس طریقے سے نقل کی جاتی ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268، اور مسند امام احمد ابن حنبل کی بھی یہ روایت ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جو حدیث نمبر ہے 24,529 نمبر کی، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو معاشرے میں نکاح ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہے۔ آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ محض ناموری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں سے بڑھ چڑھ کر کے لیے، اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے، چاہے خاندان نے غلط ہی کیوں نہ کیا ہو، تقریبات میں اس طریقے سے بے جا فضول خرچی کی جاتی ہے، لوگوں سے بڑے بڑے قرض لیے جاتے ہیں شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وسعت نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، قرض وغیرہ لے کر کے، اور پھر اس اپنی انانیت اور اسی طریقے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر اپنے آباء و اجداد کی روایات ہے اس کو جاری کرنے کے لیے نہایت ہی جو ہے غلط طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں سے قرض وغیرہ لے کر کے نکاح منعقد کیا جاتا ہے، جو معاشرے کے اندر قابل مذمت، اور اس فعل کو ترک کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نکاح کی مجلس، دوسری صورت یہ کہ نکاح کی مجلس برسر عام منعقد کی جائے، تاکہ لوگوں کے اولاً شکوک و شبہات سے انسان بچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابھی اوپر میں نے پڑھا کہ اعلنوا ھذا النکاح، اس روایت کو ترمذی کے اندر بھی نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ 207 پر، مشکات کے اندر بھی 272 صفحے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اس نکاح کا اعلان کرو۔ جس نکاح کا عام اعلان نہ ہو، وہ اگر شرائط کے مطابق ہو تو اگرچہ یہ منعقد تو ہو جاتا ہے، جو شرائط ہے ایجاب و قبول، گواہ کا ہونا، اور جو
शरीयत ने बयान की है उसके मुताबिक वो निकाह तो मुनअक़िद हो ही जाता है, लेकिन इस तरह के निकाह में बहुत से मफासिद अमूमन पाए जाते हैं। इससे इज्तिनाब करना चाहिए ताकि जो है मुआशरे के अंदर बदनामी ना होने पाए और मुआशरे के अंदर इस तरीके से जो है गलत लोगों के दरमियान मैसेज ना पहुँचे कि इस आदमी ने या फलां के लड़के ने जो है इस तरीके से निकाह कर लिया है, इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए। इस्लाह इनक़िलाब उम्मत की दूसरी जिल्द सफ़ा 52 पर इस बहस को नकल किया है, वहाँ देखें। और शामिया के अंदर है वयंदुबु इलानुहु के शामी चौथी जिल्द सफ़ा 66 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि फ़स्ल मा बैन अल हलाल वल हराम अद्दुफ़ व सौत। ये रिवायत बड़ी मशहूर है निकाह के सिलसिले में। तिरमिज़ी की रिवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 207, और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 144 की। इसी तरीके से हदीस नंबर है 16663 जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। तीसरी सूरत हमें जो अपनाने की है निकाह की मजलिस के अंदर, जो हमारी मजलिस मुनाकिद होती है निकाह की, उसके अंदर ये कि हमारा मुआशरा बेहयाई की तरफ जा रहा है। इसलिए हम अपने बच्चे और बच्चियों के जो निकाह मुनाकिद करते हैं उस निकाह को सादा करने के लिए सुन्नत तरीक़े के मुताबिक निकाह को मस्जिद के अंदर मुनाकिद किया जाए। मसाजिद के अंदर जब निकाह मुनाकिद होंगे तो तमाम तर खुराफात से हिफाजत हो जाएगी। चुनांचे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजअलूहु फिल मसाजिदी निकाह मसाजिद में किया करो। ये तिरमिज़ी की रवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 207, मिशकात की भी दूसरी जिल्द में सफ़ा 272 पर है, जिसका मतलब ये है कि मस्जिद में निकाह बहुत सी खराबियों को रोकने का सबब है और इबादत होने की बिना पर उसका मस्जिद ही में अंजाम पाना ये ज़्यादा मुनासिब है। आजकल हमारे माशरे में होता क्या है, जब निकाह ख़ानी होती है निकाह के वक्त लोग जो है दुनिया भर के कैमरे लेकर के घूमते रहते हैं, तो इस एक तस्वीर कशी से जो है हम महफूज हो जाएंगे, फिर शोर व गुल से हम जो है बच जाएंगे। निकाह मुनाकिद होगा मस्जिद के अंदर तो मस्जिद के अदब और एहतराम को बाकी और मलहूज़ रखा जाएगा और मस्जिद जो है सरापा खैर व बरकत की जगह है, तो हमारे इस निकाह के अंदर भी खैर व बरकत होगी। इसलिए हम अपने निकाह को मस्जिद के अंदर मुनाकिद करने की कोशिश करें। चुनांचे फतावा हिंदिया वगैरह के अंदर है मुबाशरत अक़्दिन निकाह फिल मसाजिदी मुस्तहब्बुन। ये फतावा हिंदिया की इबारत है, 5वीं जिल्द सफ़ा 321 की, और अद्दुर्रुल मुख्तार उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 66 पर जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, मजमुल अनहुर की 10वीं जिल्द सफ़ा 468 पर भी इसको नकल किया है। चौथी सूरत जो निकाह के मुनाकिद करने की और हमें उसका एहतमाम करना चाहिए वो ये कि इस मुबारक तकरीब का इनेकाद हमको जुमा के दिन करना चाहिए। ये बेहतर तरीक़ा है, ख़ास जुमा की नमाज के बाद हो या असर के बाद। जुमा की नमाज के बाद हो तो ये बेहतर तरीक़ा है ताकि निकाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुन्नत के अंदर शरीक हो सके, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीक़ा तो ये है। चुनांचे दुर्र मुख्तार के अंदर इबारत है वकौनुहु फी जुमाती। ये इबारत दुर्र मुख्तार की किताब निकाह 3री जिल्द सफ़ा नंबर 8 जो कराची का छपा हुआ नुस्खा है, मजमुल अनहुर उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 468 पर, और इसी तरीके से अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु की 3री जिल्द सफ़ा 129 पर नकल किया गया है। 5वीं सूरत जो हमको अपनाने की है निकाह के अंदर वो ये कि दूल्हा के गले में
फूलों और नोटों का जो हार डाला जाता है और सेहरा वगैरह बांधा जाता है, और बहुत से यूपी बिहार वगैरह के अंदर बहुत से पैसे के बड़े बड़े हार जो है लगाए जाते हैं, 500 नोटों की हार, 100 रुपए के नोटों की हार, और इसी तरीके से 50 रुपए की नोटों के हार जो है यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने तो मुरादाबाद के अंदर ये भी देखा कि दुकानों पर बाकायदा बिकते हैं ये पैसे के नोट जो है। और इसी तरीके से बिहार में भी दरभंगा ज़िला में मैंने देखा कि बहुत से दुकानों पर ये पैसे के हार बड़े महंगे जो है बिकते हैं। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि इससे परहेज़ करें। ये एक हिंदुआना रस्म है और हिंदुआना रस्म को तर्क करना चाहिए। हमारे लिए उसवे हसना हमारा कोई हिंदू नहीं बल्कि हमारे लिए उसवे हसना, और हमको किसी शख्स का तरीक़ा अपनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ तन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्हीं की ज़ात में हम तमाम मुसलमानों के लिए नमूना मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हमको हुक्म दिया हम उसको करें, और जिससे हमको मना किया उससे हम परहेज़ करें। यही जो है शरीयत मुतहरा का हुक्म है। चुनांचे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान नकल करते हैं कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है, किताबुल लिबास बाबु फ़ी लुब्सिश शुहरा, इसके तहत जो है नकल किया दूसरी जो सफ़ा नंबर 559 पर, हदीस नंबर 4031 की, जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। इसी तरीके से ये रवायत मिशकात के अंदर किताबुल लिबास अल-फ़स्लुस्सानी वगैरह के अंदर भी इसको नकल किया दूसरी जो सफ़ा 375 पर। अल्लामा मुनावी फैज़ुल क़दीर के अंदर इस हदीस के तहत और दूसरी जो है इबारात के तहत नकल करते हैं, ऐ तज़य्यन फ़ी ज़ाहिरिही बिज़िय्यिहिम वफ़ी तारीफ़िही बिउर्फ़िहिम वफ़ी तख़लुक़िहिम बिख़िल्क़िहिम वसारा बिसैरतिहिम वहदियतिहिम। ये इसके तहत जो है बहुत सारी तफसील वहाँ नकल की है, बड़ी लंबी इबारत है। फैज़ुल क़दीर जो अल्लामा मुनावी के उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 128 जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है, और जो सऊदी का रियाज़ का छपा हुआ नुस्खा उसकी 11वीं जिल्द सफ़ा 574 पर इसको नकल किया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि इन खुराफात से परहेज़ करें। छठी चीज़ जो हमको देखना है वो ये कि तक़रीब निकाह के दौरान ख़ास तौर पर हम मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना होने पाए, और कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रिवाज के तौर पर हो और उसको करके हम गुनहगार हो जाए। लिहाजा गुनाह का कोई काम ना हो। मसलन आजकल बहुत सारे निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर लड़कियां नाचती हैं या बैंड बाजा वगैरह जो है बजाया जाता है, फ़ोटो खींचा जाता है, निकाह की जो है वीडियो बनाई जाती है, या इसी तरीक़े से और भी दीगर खुराफात होती है। बम्बई वगैरह में जब निकाह का मौका आता है तो बच्चे जो गली कुची के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को अंडा फेंक करके मारते हैं और बहुत सारा जो है अंडा ज़ाया कर देते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। फिर ये कि माल का ज़िया है, ये बहुत सारे इसके अंदर मफासिद पाए जाते हैं। किसी और को लग गया, मैंने ख़ुद देखा है कुरला के अंदर के निकाह मुनक़िद हुआ तो बच्चे जो है एक दूसरे को अंडा फेंक करके मार रहे हैं। ये एक तरीक़े की अल्लाह की नियामत है, इस नियामत को ज़ाया करना है। और फिर जो है माल का ज़िया है और बहुत सारे इसके अंदर मफासिद है। इसलिए और भी बेशुमार मफासिद इस निकाह के अंदर है। तो इन तमाम रस्म व रिवाज और फजूल चीज़ों से हम मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। हम मुसलमान इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह उसके रसूल ने इस तरीक़े से गाना बजाना, गीत गाना, बिहार वगैरह में बहुत सी औरतें बैठ जाती है और जब लड़कियां मेहंदी करती है, हल्दी वगैरह लगवाती है
उस वक्त जो है इलाके की औरतों को बुला करके फिर जो है गीत गाया जाता है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसकी कोई असलियत इस्लाम में नहीं है, इसलिए इससे परहेज़ करनी चाहिए। ना ही लड़के को जो है गीत गा करके उसको माजा बैठाया जाए और ना ही लड़की को जो है इस तरीके से मेहंदी और उसकी हल्दी की जाए। ये सब हिंदुआना रस्म है जो काबिल तर्क है। इस तरीके से करने से निकाह से बरकत के ख़त्म होने का सबब बनेगा, इसलिए हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। और हदीस के अंदर है कि जब तुम देखो कि कोई खिलाफ शरअ बात हो सकती है, हो रही हो, तो तुम उसको रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ से कुदरत है तो हाथ से, ज़ुबान से, या कुछ नहीं है तो कम से कम दिल से जो है इसको बुरा करो, बुरा मानो। हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला का से रिवायत है, अल्लाह के रसूल का फरमान नकल करते हैं जिसको सही मुस्लिम में नकल किया है। कहते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। ये बड़ी मशहूर हदीस है। इस हदीस के ज़ेल में हमें इस मुआशरे के अंदर जो खुराफात हो रही है उससे गुरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ुद भी और लोगों को भी इससे बचाना चाहिए। चुनांचे ये रिवायत सही मुस्लिम किताबुल ईमान के अंदर बाबो बयानी कौनी नाही अनिल मुनकर मिनल ईमान, इसके तहत जो नकल किया है। हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 51 पर, और इसी तरीके से जो है सफ़ा 51 और 52 पर हदीस नंबर 49, और बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का जो छपा हुआ नुस्खा उसके हदीस नंबर 49 है। मिशकातुल मसाबिह बाबुल अम्र बिल मारूफ पहली फ़स्ल अल फ़स्लुल अव्वल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 436 पर इसको नकल किया है। और इसी तरीके से मिरकातुल मफातिह के अंदर भी इसको नकल किया है। वइदा काना मकरूहन नदब व शर्तुहा अल्ला युअद्दी इलल फितनती, ये मिरकातुल मफातिह की इबारत है 8वीं जिल्द सफ़ा 861 और 862 पर। फिर बहरुर राइक़ वगैरह के अंदर है अल मलाही कुल्लुहा हरामुन हत्ता तगन्नी बिज़रबिल क़स्बी, ये इसके तहत जो है नकल किया है। अल बहरुर राइक़ की 8वीं जिल्द सफ़ा 188 जो कोयटा का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से 7वीं चीज़ जो हमको निकाह के मौके पर, तकरीब के मौके पर हमको करना है और किस चीज़ों से परहेज़ करना है, किस चीज़ को करना है, उनमें से एक कि जो रस्म और रिवाज के मुताबिक लंबी लंबी बारातें मुसलमान लेकर के जाता है, तो पहली बात तो ये जानना चाहिए कि इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं है और बारात शरीयत का कोई जुज़ नहीं है। और ये भी जानना चाहिए कि निकाह का ना कोई जुज़ है ना शरीयत का कोई जुज़ है। ये बारात जो ले जाते हैं 200 लोगों को, 250 लोगों को, 500 लोगों को, ये जितने भी लेकर के जाते हैं, ये शरई एतबार से इस्लाम में नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है। इसका तर्क जो है हम सब इंसानों के लिए ज़रूरी और लाजिम है, क्योंकि हम अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। जो अल्लाह उसके रसूल को मानेगा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि वो दिल से मानता है, तो फिर दिल जो है सिर्फ और सिर्फ इसका नाम नहीं कि जो मेरे मन में आया मैं उसको मान लूँ, जो मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ हो उसको नहीं मानूँ, बल्कि वो हम मुसलमान तो वो है कि अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह के रसूल ने जो कहा उसको मानना है, चाहे नफ्स चाहे या ना चाहे। इसलिए जो है इससे परहेज़ करना चाहिए बारात वगैरह के ले जाने से। इस तरीक़े को तर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अलबत्ता लड़की को लेकर के आना है तो मुआशरे के अंदर जो घर के लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनमें से 2, 4, 5 को साथ लेकर के जाए और दुल्हन को लेकर के चले आए पर्दे के एहतमाम के साथ। और ऐसे ही लोगों को लेकर के जाए जो संजीदा मिजाज के हो। ऐसा ना हो कि वहाँ जा कर के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए और हंगामा मचा दे, ऐसे लोगों को नहीं। इसकी इजाज़त है कि 2, 4, 5 आदमी जा कर के दुल्हन को लेकर के चले आए। इसकी इजाज़त नहीं कि 200, 250 लोगों को जो है लेकर के जाए, बतौर फ़ख्र ये कहे कि हमने जो है बारात में 10 गाड़ी लेकर के गए थे, 15 गाड़ी लेकर के गए थे, 200 बाराती को लेकर के गए थे। ये इसके शरई एतबार से इजाज़त नहीं है। ये सब जो है खुराफात है और हिंदुआना रस्म है।
चुनांचे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है उससे इस मसले को मुस्तफ़ाद किया गया है, मन दुइया फलम यजिब फ़क़द असल्लाहु व रसूलुहु व मन दखल अला गैरि दावतिन दखल सारक़न व खरज मुग़य्यरन। ये इस इबारत से जो है इस मसले को मुस्तफ़ाद किया गया है, जो सुनन अबी दाऊद की दूसरी जिल्द सफ़ा 525 पर है। और इसी तरीके से फतावा हिंदिया में वलीमतुल उर्स सुन्नतुन व फ़ीहा मसूबतुन अज़ीमतुन, इसके तहत जो है नकल किया फतावा हिंदिया की 5वीं जिल्द सफ़ा 343 पर इसको नकल किया है। उर्दू किताब के अंदर अगर आपको देखना है तो कुछ इसकी बहस जो है किताबुल मसाइल के अंदर हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी ने जो है अपनी किताबुल मसाइल की 4थी जिल्द अक़्द निकाह से मुताल्लिक़ मसाइल निकाह की तक़रीब सफ़ा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 78 से लेकर के तकरीबन सफ़ा नंबर 80 तक इसको नकल किया है। तफसील इस किताबों में देखेंगे, इन किताबों में देखेंगे जिसका मैंने हवाला दिया तो इस सब किताबों में मिलेगा। बहरहाल खुलासा ये कि हमको तमाम तर खुराफात से परहेज़ करना चाहिए, अपने रस्म व रिवाज को जारी करके अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। इसलिए हमको अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है, चाहे दुनिया नाराज़ रहे हमको उसकी परवाह नहीं। अल्लाह उसका रसूल राज़ी तो सब काम होगा, और अगर हम लोगों को खुश करेंगे अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करेंगे तो हमारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसलिए हमको जो है दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े को मान करके चलना और उसी में कामयाबी समझना और उसी पर अमल करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है और हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है।